this study, can we achieve salvation? हम देखते हैं salvation को क्यों हासिल करें, So, कैसे हासिल? you deposit the word makes us to shine in the kingdom of God. जब हम अल्फाज बनाते हैं तो खुदा की बाशी में शाइन। Yeah, we are going to learn salvation and being born again. आज हम सीखेंगे रजात और नए सिरे से पैदा होना। So you understood the sin in the first class, आप गुनाह के बारे में पहली क्लास में समझ चुके हैं। and the sisters have given very good answer, सिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। and you will mark they are going to shine in the kingdom of God. Yes, Lord. Hallelujah! Because when we worship the word makes us to shine in the kingdom of God. जब हम अल्फाज बनाते हैं तो खुदा की बाशी में शाइन। It's not only an act. Sin is not only a thought. Sin not only a nature. Sin is a spirit. You can read Genesis chapter 4 verse number 7. हम देखते हैं पैदाइश चैप्टर 4 उसके वर्स नंबर 7। Yeah. 7 उसमें देखेंगे कि गुनाह एक सोच नहीं है, गुनाह खाली एक सोच नहीं है। खाली एक सोच नहीं है। बुरी सोच, हम सोचते हैं कि गुनाह मीन्स बुरी सोच, गुनाह मीन्स झूठ बोलना, गुनाह मीन्स गुस्सा करना. That's not only those things, but real sin is, we can read from verse number 7. अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। Okay, कौन इंतजार कर रहा है इधर? गुनाह इंतजार कर रहा है। काय के इंतजार कर रहा? What is the intention of sin? Who is waiting there? And what is the intention of the sin as per that scripture? ताकि वो हमें दबा दे। Okay, गुनाह इंतजार कर रहा है. That means the sin have a desire. Sin have its own desire. So what is the desire of the sin? To capture your soul. हम देखते हैं कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, वो देख रहा है कि मैं किस रूह को पकड़ लूं। So it is the intention to capture your soul. और ये अब पूरे ध्यान से आपके रूह को अपने कब्जे में करने के लिए But in the scripture, the God is saying what we must do. इस पैराग्राफ में खुदा क्या बयान करता है? So what God is saying there? खुदा ने वहाँ क्या कहा? Everyone, I read your Bible and give me the answer. It's the Bible study. You have to give me the answer. And those who want to be excellent, bring your Bible. Others, open the Bible in your mobile or wherever. But Bible study means the Bible should be there, and your book should be there, pen should be there. You have to write the notes, and you should do the homework. Then only you should be called excellent students. Okay, so read and give me the answer. आप पढ़े और उसका जवाब दें। In this scripture, we have two connections. One is sin is waiting to capture the Cain and the mankind, and same time God is saying something. What God is saying there? हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में जो बयान किया है कि गुनाह किस तरह बैठे, दो चीजें बयान की गई हैं। आप उसको रीड करें। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। क्यों गुनाह दबका बैठा है? अगर हम भला ना करें, अगर भला ना करे मीन्स खुदा के रास्तों को छोड़कर दूसरा रास्ते में चले, तब क्या होएगा? गुनाह तुझे कब्जा करेगा, तेरे ऊपर वो रूल करेगा। बट खुदा बोलता ऐसा होने को मत दे दो, उसके बदले में कुछ करो। क्या करो? भला करो आगे और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। सब लोग बोलो उस पर गालिब आओ। किस पर? जोर से बोलो। और आपको you know the reality. Hallelujah. The we cannot overcome the sin. Therefore Jesus came and he destroyed the power of sin and he gave us the victory. हम देखते जब यीशु मसीह आया, उसने गुनाह पर हमें विक्ट्री दी, हमें फतह याबी बख्शी। So what you should do to experience that victory? और हमें उसका कैसे तजर्बा हुए? So today we are going to learn. और आज हम इस बारे में सीखेंगे। Are you ready? Yes. Okay. We have exactly 30 minutes to study. So today's subject is salvation and born again. So what is salvation? I will read it in English. Sister will read it in Urdu. As sister reading in Urdu, I need you all should repeat. Okay? So salvation means restoration of our relationship with God. खुदा के साथ हमारे रिश्ते को बहाल करना। Okay, everyone. रिश्ते को बहाल करना। Okay, so sin has divided
separated our relation. गुनाह इससे हमारे दरमियान एक खला पैदा करती है। So before we are one with God, इससे पहले हम खुदा के साथ एक थे, but man choose to sin against God. और इंसान ने गुनाह का इंतखाब किया, So sin separated man from God. और गुनाह ने हमें खुदा के साथ दूरी पैदा कर दी। But in the salvation, in the atonement of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी में, in the atonement, means यीशु मसीह का कुर्बानी से और उसका बर्रा का लहू से, हालेलुया, the salvation is given. The salvation is given through the blood of Jesus, so we can have relationship with God. खुदा के जो लहू, यीशु मसीह के जो लहू है, उसने खुदा के साथ हमारे रिश्ते को दोबारा बहाल कर दिया। Amen. So lift your hands and say, I receive the blood of Jesus. I receive the blood of the Lamb of God. Hallelujah. What is in that blood? Exactly. In the blood there is salvation, there is forgiveness, there is righteousness, there is life, there is holiness. We are going to study when you are doing the study of the blood of Jesus. हम देखते हैं यीशु के लहू में रिहाई है, मुआफी है, और ये सब हम आज इस वक्त सीखेंगे। No, and in the next study, the blood of Jesus, we are going to learn. Okay, what is salvation? It is eternal life with God. और खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी। Hallelujah. Repeat. खुदा के साथ What is salvation? Our return and reconciliation with our heavenly Father. हमारा अपने आसमानी बाप के साथ वापस आना और सुलह करना। हमारा अपने आसमानी बाप के साथ वापस आना। Okay, let me assume Adnan says, I am saved by grace. जैसे कि अदनान भाई ने कहा कि मैं फजल के साथ। That means his relationship is restored with God. इसका ये मतलब है कि इस खुदा के साथ इनका रिश्ता बहाल है। He don't need to say I am a sinner now, because sinner cannot have relationship with God. अभी इनको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि गुनाहगार का खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं। Because the blood of Jesus has washed you. क्योंकि खुदा के लहू ने इन्हें धो दिया। So what is salvation? It is a deliverance, it is a freedom, it is the escape. ये रिहाई, आजादी और बच निकलना। So from what? Deliverance from deadly sin and its consequences. जो रिहाई है वो मौत के लायक गुनाह और इंजाम। The salvation means deliverance from the punishment of sin, rescue from the punishment of sin. जो salvation है वो है रिहाई और मौत से बाहर निकल आना। And filth of sin, और गुनाह की गंदगी से, and dominion of sin, गुनाह का गलबा, and the slavery of sin, गुनाह की गुलामी से, and the guilt of conscience, मुजरिम ज़मीर से, and from the hellfire, और जहन्नम की आग से, and from eternal punishment. और हमेशा की सजा से। So salvation is very important. और निजात बहुत जरूरी है। We can receive the salvation through the blood of Jesus. हम देखते हैं कि जो निजात है यीशु के लहू से हासिल करते हैं। You can lift your hand and say, Lord, I thank you. You have delivered me from the deadly sin and its consequences. You have delivered me from the punishment of sin. You have delivered me from the filth of the sin, dominion of the sin, slavery of sin, guilt consciousness, from hellfire, eternal punishment. Hallelujah. So now we are going to discuss a little more about salvation. आइए हम निजात के बारे में और डिस्कस करेंगे। So you understood the salvation now. आप अभी salvation निजात के बारे में समझ चुके हैं। So one question to the left side, hallelujah, why salvation is required? हम तो यहाँ से पूछेंगे कि निजात क्यों जरूरी है। हमेशा का जिंदगी, अगर salvation नहीं है, हम हमेशा का जिंदगी से बाहर है। Very good answer. So salvation के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक जो सीखा हुआ पॉइंट से। रिहाई के लिए, निजात के लिए हमें क्या जरूरत है? किस चीज़ की? गुनाह पर गलबा। Okay, गुनाह पर गलबा करना और यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखना, no problem. Okay, so we will see in this study, can we achieve salvation? हम देखते हैं हम निजात का क्यों चुनाव करते हैं। पर चुनाव नहीं रहेगा, achieve. हासिल। हासिल। हम salvation को क्यों हासिल करें? So कैसे हासिल करें?
Yeah. So many people they try to achieve salvation. अब बहुत से लोग हैं जो कि सैल्वेशन को अचीव नहीं कर पाते। They try to achieve salvation. वो कोशिश करते हैं वो नजात को हासिल करें। Because they have a sinful conscience. क्योंकि उनके लिए सिंपल कॉन्शियस है। वो लोग को गुनाह का कॉन्शियस है, वो लोग को अंदर गुनाह बार करता है, तू गुनहगार है, तूने वो गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, इसलिए they try to achieve salvation. वो उनके अंदर का जो ज़मीर है वो इस बात को बयान करता है कि तू गुनाहगार है। अब वो इस शर्मिंदगी से बाहर आने के लिए वो नजात की तरफ बढ़ते हैं कि हमें कैसे नजात मिले। Correct. And they know that sin has separated them from God. वो इस बात को जानते हैं कि गुनाह ने हमें खुदा से जुदा कर दिया। So now they do the good works to bridge that relationship, that gap. वो बहुत सी नजात के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं कि खुदा के साथ जो अपना रिलेशन है वो दोबारा बहाल कर सके। That was a human effort to achieve salvation. वो अपनी इंसानी कोशिशें, अपने इंसानी सोर्सेज लगाते हैं कि हम किस तरह खुदा के करीब जा सकें। They do sacrifices. वो बहुत सी कुर्बानियां करते हैं। They do donations. वो डोनेशंस देते हैं। They go for pilgrimage to religious places. वो बहुत से ऐसे रिलीजियस काम करते हैं कि मैं ये काम करूंगा मुझे नजात मिलेगी। So they go to visit the temple, churches, mosques, meetings, etc. But truth, it cannot give them salvation. बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फलान मंदिर में जाऊंगा, इतनी तपस्या करूंगा लाइक दिस कि वो फिर भी जो है अपनी नजात को हासिल नहीं कर पाते। So what we should do to experience salvation? और हमें इस नजात का कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है? So we are going to study why our good works cannot save us. It is in Romans chapter 3 verse number 20. I will read it in English. Sister will read it in Urdu. When she is reading, you all should repeat. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. और हम सब के सब ऐसे हैं क्योंकि शरीयत के अमाल से के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इसीलिए शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। अब मैं पीछे आप रीड करेगा क्योंकि शरीयत के क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इसीलिए शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। So Isaiah 64 verse number 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. और हम यशायाह 6 उसके 64 आयत में पढ़ेंगे और हम सब के सब रीड आफ्टर मी। Yeah. और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानित है। So two words are used here in Isaiah 64 verse number 6. Please circle and tell me what is those two words. हम देखते हैं यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल हुए। And there is many words. Two words are important. नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक। So everyone you can say unclean and filthy rags. हम पढ़ेंगे नापाक चीज नापाक चीज और नापाक लिबास। नापाक लिबास. Okay, good word. Idea. सोचिए ऐसा हालत है इंसान का खुदा के सामने, और खुदा अगर इंसान कितना भी भला काम करने से salvation को, नजात को वो हासिल नहीं कर सकता है. So what is the solution? The solution is from God. आइए हम देखते हैं कि इसका क्या रास्ता, इसका क्या हल है। हम इस कदर नापाक है, हमारी कोई भी अच्छे अमाल खुदावन के हुजूर हमारी रास्तबाजी या हमारी नजात का काम नहीं कर सकता। हम इस हल के लिए आगे बढ़ेंगे। So अगर आपको कोई बोलता है कि ओके आपको बहुत परेशानी है ना, आप चद्दर चढ़ाओ, आपको बहुत परेशानी है ना, आप कैंडल जलाओ, आपको बहुत परेशानी है ना, 10 बार माला जपो,
उसमें से कुछ होने वाला नहीं है। वो इंसान की सोच है, इंसान की सोच खुदा का अगेंस्ट है। इसलिए you want to receive salvation, salvation cannot be achieved. हम देखते हैं इंसान अपनी जाती कोशिशों से निजात हासिल नहीं कर सकता। Everyone say, I cannot achieve salvation, I cannot achieve salvation. but I can receive salvation. Hallelujah. इसलिए हम बोलते हैं कि salvation is free for everyone. इसलिए कहते हैं कि निजात मुफ्त है, वो हर एक के लिए है। So let me read Romans 6:23. I will read it in English. Sister will read it in Urdu. You are going to repeat after her. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Everyone you can circle gift of God. Gift of God. और एक बार Gift of God. salvation is a gift of God. Gift of God. जैसे ये breath, I am breathing in and out, right? Yes. This is a gift of God. Yes. Amen. I have beautiful 2 hands and 10 fingers. You can see. This is given. It's the gift of God. Same way, salvation is the gift of God. हम देखते हैं निजात जो खुदा की तरफ से तोहफा है, हमने द गिफ्ट ऑफ गॉड। जैसे कि हमारी सांसें खुदा की तरफ से एक तोहफा है, हमारे हाथ, हमारे फिंगर्स सब खुदा की तरफ से तोहफा है। हम खुदा की कलाम में से रोमियो 23:6 पढ़ेंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। क्या है खुदा की बख्शिश? गिफ्ट ऑफ गॉड। या आप रिपीट कीजिए उस स्क्रिप्चर को जोर से। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। Okay, if you are comfortable, person next to you, उसका आंखों में आंख डाल के बोलिए, मेरा next सोबिया है, when सोबिया, Aliyah, the wages of the sin is death, but the gift of God is an eternal life through Jesus Christ our Lord. अभी आप करना प्रैक्टिस करो। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। आंखें मिला के आंखें मिला करो मत। क्योंकि गुनाह की मौत है, मगर खुदा की बख्शिश में हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। Amen. Hallelujah. So side note बताता है कि no matter how hard you try, man cannot overcome the root problem of sin, making him helpless because there is no escape from sin. हम देखते हैं कि कोई भी हम काम करें वो हमारी निजात के वास्ते, हम अपनी जाती कोशिशों से निजात हासिल नहीं कर सकते। So what is the solution then? हम देखते हैं अब इसका हल क्या निकलेगा। So how to experience our salvation in our life? और हम सल्वेशन का निजात का अपनी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस, कैसे तजुर्बा कर। So whatever I cannot be achieved can be only received freely if someone else pays the cost for it. हम देखते हैं कि हम इसको फ्री हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल फ्री। So how we can have this salvation? हमारे पास निजात कैसे हो सकती है? Let me assume this mobile is costing 5,000 really नहीं है, okay? अभी मेरे पास 5,000 नहीं है, but I want to experience, मुझे ये मोबाइल चाहिए, कैसे ये मोबाइल को मैं पा सकता हूँ? हम कोई देखते मुझे ले दे, हाँ? अगर कोई मुझे ले दे, चलो अदनान भाई का बिजनेस बढ़ गया, एक क्लाइंट के बदले में 10 क्लाइंट लगा, उसके मन में आया कि चलो पास्टर के लिए मोबाइल लेंगे, और बेस्ट मोबाइल उसने लिया, पैसा उसने दिया, बट अभी मेरे हाथ में है, so I can enjoy every time. Thank you अदनान के लिए, खुदा कितना अच्छा दोस्त तूने दिया, ऐसे 10 जन चर्च में आए, देने वाला चाहिए ना चर्च में, बिल्कुल चाहिए। so अभी now I am experiencing, enjoying, using my mobile, but I am not achieved it, I am not paid for it. Who paid? हम देखते हैं कि ये मोबाइल है जो अदनान भाई ने इनको दी है। अब इनको इस बात का तजुर्बा, एक्सपीरियंस हो गया है कि इसकी कितनी वैल्यू है। Am I right? Same way, salvation is free to us. इसी तरह निजात हमारे लिए फ्री है, But somebody paid the price. लेकिन बहुत से लोग इसकी कीमत अदा करते हैं। बहुत लोग नहीं है, someone paid the price. कुछ लोग ऐसे किसी ने इसकी कीमत चुकाई है, मोबाइल के अदनान ने चुकाई, हमारा नजात के लिए हमारी निजात के लिए किसने कीमत ओके कैसे चुकाई?
चुकाने के। कैसे चुकाए? और भी उसने बहुत कुछ किया उधर। मार खाई। ओके, उसने क्या किया? मैं बोलता हूँ कैसे चुकाए? वो अपना आप को खाली किया, बस। और अब हमारे लिए, आपके लिए वो सेवक बना। उसके बाद खुदा की मर्जी मेरे जीवन में हो जाए करके उसने दुआ किया। जैसे खुदा का मर्जी था, हमारे सारा गुनाह, बोलो सारा गुनाह, खुदा बाप ने यीशु मसीह के ऊपर शिफ्ट किया। सिर्फ गुनाह नहीं, हमारा गरीबी को उसके ऊपर डाला, हमारा बीमारी को उसके ऊपर डाला, हमारा श्राप को भी उसके ऊपर डाला, हमारा रिजेक्शन को भी उसके ऊपर डाला। ये सब कुछ उसके ऊपर डाला, वो तोड़ा गया। He was broken and he gave his precious blood. So he paid the cost of our salvation. हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपना सारा खून अपने आप को खाली कर दिया और अपना बदन सलीब पर तोड़ दिया। He paid the expensive cost और उसने एक बड़ी कीमत अदा की for this gift. किस लिए? इस नजात की गिफ्ट के लिए। The innocent person became a sin offering for us. हम देखते हैं कि खुदा ने हम सबको Innocent person, जो जिसने गुनाही नहीं किया है, वो हमारे लिए कफारा बन गया। And 1 Corinthians 6:20, please everyone read English or Urdu, no problem, start reading. क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। Amen. Salvation is free. So once you receive the salvation, you have to offer your body as a living sacrifice. क्योंकि आप कीमत से खरीदे गए हो, इसीलिए हमें अपने आप को खुदा के जलाल के लिए पेश करना है। So once you understand this cost, जब हम इसकी कीमत को समझेंगे, hallelujah, you will never sin. और आप कभी गुनाह नहीं करेंगे। So today white people are sinning, hallelujah, चलता है attitude, because they don't know the cost that Jesus has paid for us. क्योंकि कुछ लोग गुनाह को बहुत हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि हो जाता है गुनाह, वो ये एक मामूली बात नहीं है, इसके लिए जान दी गई है। So how to receive salvation now? और हम नजात कैसे हासिल करें? Did you know that I cannot be saved without Jesus being born as a man? हम देखते हैं, हम यीशु मसीह, क्या आप जानते हैं कि मैं यीशु के एक आदमी के तौर पर पैदा हुए बगैर नहीं बच सकता। So God is a spirit, और खुदा रूह है, but God cannot bring the salvation to mankind. और रूह मर नहीं सकती। No, mind you. Okay, God is a spirit. और खुदा एक रूह है। खुदा रूह है। और सब लोग खुदा रूह है। God is spirit. खुदा रूह है। And he cannot die. और वो मर नहीं सकता। And he cannot bring the salvation also. और वो जो नजात उसने दी है, वो भी नहीं मर सकती। नहीं, वो नजात नहीं ला सकता है। वो नजात नहीं ला। इसलिए वो इंसान बना, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया, गुनाह की मजूरी मौत थी। अभी खुदा मौत को नहीं ले सकता है, इसलिए खुदा इंसान बना, खुदा बेटा का जगह लिया। आमीन, हालेलुया। So it is very important that we should understand God cannot save us without Jesus. हम देखते हैं खुदा हमें यीशु के बगैर बचा नहीं सकता, इसलिए कि यीशु खुदा है, रूह है, और उसने बदन इख्तियार किया हमारी नजात के लिए। So Jesus came as a man. और यीशु मसीह इंसान के रूप में आया। And when we sinned, he took that place. और जिधर हम लोग गुनाह किया, जो गुनाह की वजह से जो जगह में हम थे, we were in the captive. So Jesus took that place. और जहाँ हमने गुनाह किया, यीशु उस जगह पर आ गया ताकि उस गुनाह की जड़ को खत्म करे। And he took the suffering, he took the punishment of man. और उसने वो तमाम सजा जो इंसान की थी अपने ऊपर ले ली। So Jesus died in the most brutal crucifixion ever conceived by man. उसने वो सजा जो इंसान को थी, उसने खुद पर उठा ली। And he cried, my God, why you have forsaken me? और उसने वो तमाम गुनाह खुद पे लिया और खुदा को पुकारा, ऐ खुदावंद। And there was great agony. और ये Great agony. That's the translation. तकलीफ, अज़ियत। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जुदाई की बड़ी अज़ियत।
Okay, there was great agony of separation. और ये सबसे बड़ी अजियत थी जो हमने देखी कि खुदावंद यीशु खुदा बाप से जुदा हो गए। So why Jesus was separated on that cross? और ये जो जुदाई हुई किस वजह से हुई? Because all our punishment, sin was laid upon him. क्योंकि हमारी तमाम बदियां, हमारी तमाम सजाएं, हमारी तमाम लानतें उस पर लाद दी। We will read from 1 Peter chapter 3 verse number 18. हम देखते हैं पहला पतरस 2 उसकी 24 आयत। In 1 Peter 3:18, for Christ being righteous died for sin of the unrighteous and died for us once for all that he might bring us to God. आइए हम देखें पहला पतरस 18:3 मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नाराजों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। So 1 Peter 2:24, he himself bore our sin in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds we have been healed. वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। So these are the very important scripture for understand the salvation. You can write the scripture, write the words and meditate on this. हम देखते हैं कि ये खुदावंद का पाक कलाम जो कि बहुत जरूरी है, हम इसे रीड करेंगे और इसका समरी बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। And restoration is very important in our life. इंसान की तहकीक के मकसद की बहाली बहुत जरूरी है। So when God created man, he has created him as a ruler, to created him to have a fellowship. हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने जब इंसान को बनाया, जब खुदावंद ने इंसान को बनाया उसको हर चीज पर इख्तियार बख्शा। and he had, God created him to have a fellowship, और खुदा ने जो फेलोशिप है, to have fellowship with man, खुदा की जो इंसान के साथ राब्ता है, ताल्लुक है, but it was lost because of the sin. Now through salvation it is given back. हम देखते हैं वो राब्ता जो खुदावंद के इंसान और खुदा के दरमियान था, वो जो मुंतका हो गया था, कट गया था, अभी वो दोबारा से बहाल हुआ है उस नजात के वसीले से। So now question for the class, what do you think? Do you have to is salvation is compulsory आपकी नजर में नजात जरूरी है for everyone or only for a few people they want to preach in the church? Everyone means including Muslims, Hindus? नहीं करना। All over the world. Okay, again सोचिए आप एक रूम में शेयरिंग में है, आप अकेला नीचे सोता है और आपके ऊपर और भी 4 जन सोता है, वो लोग को भी salvation चाहिए? Yes. फिर उसको कौन देगा? अच्छा, praise God, अच्छी बात है। So salvation is compulsory. हम देखते हैं कि नजात बहुत जरूरी है सब खास व आम के लिए। So do we have a free will to choose or reject the salvation? और क्या हम आजाद हैं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें, हम नजात को हासिल करें या हम गैर नजात याफ्ता रहें? What is your opinion? Do mankind or we or others, do they have a choice to receive salvation which is prepared by God either through Jesus or they can reject it? They have choice. Yes. In the kingdom of God there is choice. ये Amen. खुदा की बादशाहत में हमें चॉइस दिया, हमें फ्री छोड़ दिया, 2 रास्ते हैं, हम नजात हासिल करें या गैर नजात याफ्ता रहें। हम पे डिपेंड है, हम किसको चुनते हैं, किसका इंतखाब करते हैं। Therefore, I have given you also choice. हालेलुया, आप होमवर्क कर सकते हो, आप सीख सकते हो, हालेलुया, क्लास में टाइम में आ सकते हो, नहीं आएगा तो भी नो प्रॉब्लम, मैं गला मिलाएगा, क्योंकि our God is a God of choice. हम देखते हैं कि आप सबको जैसे कि आजादी है कि आप होमवर्क जमा करवाएं ना करवाएं, आपको जैसे पास जिन्हें आजादी दी। Yes, but wise people will do the homework. Hallelujah. अक्लमंदी इसमें क्या वो होमवर्क करें? Because when you do the homework, you are shaping yourself to the calling of God. हम देखते हैं जब हम होमवर्क करते हैं, काम करते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम अपने आप को शेप करते हैं। So how to receive salvation is very simple. As per John 3:16, whoever believes हम देखते हैं हम निजात को कैसे रिसीव कर सकते हैं। and accept Jesus Christ as a Lord and Savior, they receive the free gift of salvation. They receive the life of God.
हम देखते हैं हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और लाइफ सेवियर के तौर पर रिसीव कर सकते हैं। So to receive salvation, you must have understanding, clarity of sin. Why we need salvation? जब हम निजात को कबूल करेंगे तो उससे पहले हमें इस बात की जरूरत है कि हमें महसूस हो कि हमने गुनाह किया है और हमें इसकी अशद जरूरत है। Yes, so whenever you are giving the gospel, don't touch the religion, touch the real problem, that is sin. आप जब इसको टीच करें, दूसरों को बताएं तो उसके रिलीजन को नहीं बल्कि उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि तुझे इसकी किस तरह से जरूरत है। Normally we do the mistake, we take some weak points of X religion, Y religion, उसके बाद देखते हैं हमारा religion बड़ा है। No, 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 that is not the way of preaching the gospel. You have to touch the root, that is the sin that's hiding in them. Yes, हम देखते हैं कि जब हम किसी को अपना मैसेज या प्रीच करें या खुदा की तालीम के बारे में बताएं, हम ये नहीं उसको बताना कि तुम्हारे वीक पॉइंट क्या है या हमारा मजहब कितना बड़ा है। हमें उसकी गुनाह की जड़ को खत्म करना है, कि उसको बताना है कि आप में किस तरह की जड़ पाई जाती है। हमें उस जड़ को कट करना है। The root is the sin. We have to attack the sin. हमें देखना है जो गुनाह की जड़ है, हमें उसको उखाड़ना है, उसको प्रीच करना है। We cannot save the people by knowledge, by religion knowledge. हमें उनको मजहब की मालूमात नहीं देनी, हमें उनको खुदा के कलाम इस तरह बताना है कि वो उनके अंदर से जो गुनाह है। We cannot give salvation by arguments. हमें आर्गुमेंट के साथ नहीं करनी। Maybe argument you will win because you have a pure doctrines. But salvation can be given when that person understands he is in the bondage of sin. If you live in sin, he will go to hell. हमें जब भी प्रीच करना है, हमें सामने को इस तरह से बताना है कि उसको महसूस हो कि वो गुनाहगार है, उसको खुदावंद के कलाम की जरूरत है। And whenever we are preaching, we should preach in the respectful way. हमें उसको बहुत ही मोहब्बत से और रिस्पेक्टेड के वे से बताना है कि उसको रिस्पेक्ट महसूस हो, उसे इस चीज का एहसास नहीं दिलाना कि तुम जिस मजहब में हो वो ऐसा है या वैसा नहीं। हमें उसको इस तरह से बताना है कि उसको पता है कि उसको मोहब्बत की जरूरत है, उसको यीशु की नजात की जरूरत है। So my brother once he told, कितना भी अच्छा हलवा आपने बनाया, अगर उसको कुत्ता का वो बर्तन में देगा कौन खाएगा? हलवा तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशबूदार है, अगर उसको सही बर्तन में हम लोग डाल के नहीं देगा, so वो खाएंगे नहीं, उसका वैल्यू ऐसे ही। Whenever you give the gospel to others, please ask the wisdom of God. खुदा मैं gospel देने से उसके अंदर उम्मीद जागी। Amen. So receive salvation, you must have clear understanding of the need of salvation. हम देखते जब हम प्रीच करें तो हमें उस सामने वाले को उस नजात की जरूरत हो, उसको पहचान हो कि हमें गुनाह वाली जिंदगी गुजार रहा। And second, you want to experience salvation, you have to admit before God you are a sinner. हम खुदावंद की हुजूर में जाने से पहले इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हाँ हम गुनाहगार हैं और हमें नजात की जरूरत है। And we have to repent from our ways and walk in God's ways. और हमें अपनी उन राहों से फिरना है और उर्दू में इतराफ करने का। थर्ड, तौबा, सही है। और फोर्थ, यकीन। और फिफ्थ, एक्सेप्ट। और सिक्स, रेस्पॉन्ड। सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग 5 तक हालेलुया बोलते रहते हैं। जब 6 पॉइंट आएगा, क्या लिखा है 6 पॉइंट? प्लीज मुझे पढ़ के बता दो ना। मसीह के एहकाम को फरमाबरदारी से जवाब देना, हम अपनी मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारने के आदी हैं। We used to live according to our own desire before. अभी क्या करने का? Obedience में चलने का, उसको बोलते हैं water baptism. Praise God. So let me quickly finish today's class. So you can read Acts chapter 16:31. You can read Acts 2:21. You can read Romans 10:9-10, Ephesians 2:8-9. These all things support the 7 points. हम इन तमाम आयत को जो आपके सामने पढ़ी गई हैं, इन तमाम को अपने पॉइंट्स में लिखेंगे और इसको रीड करेंगे। So the 6th point which I told how to receive salvation, this is supported in Acts 16:31, Acts 2:21, Romans 10:9-10, Ephesians 2:8-9, and once you complete these scriptures writing, जब आप ये तमाम स्क्रिप्चर लिखेंगे जो पहले के अब तमाम हवालाजात आपको बताए गए, वो तमाम इसको हम इस तरह से लिखेंगे। so you will understand what is in
salvation? आप समझ गए हो कि salvation में क्या है? Everyone say there is forgiveness in salvation. नजात में है माफी, There is a redemption in salvation. नजात में है छुटकारा, There is reconciliation with God in salvation. नजात में खुदा के साथ सुलह, There is acceptance before God. हम देखते हैं खुदा की मकबूलियत है, There is adoption before God. salvation में खुदा को अपनाना, Salvation में हमारा adoption है, खुदा हमको उसका फैमिली में अडॉप्ट करेगा. हम देखते हैं कि जब नजात में खुदा हमें अपना ले पालित औलाद बनाता है, अपना बेटा अडॉप्ट करता है. So in salvation we have forgiveness. जोर से बोलो, we have forgiveness. We have redemption. We are reconciled with God. We are accepted by God. We are adopted in the family of God. We are justified. There is no more condemnation. A new birth. I am born again. और नया जन्म